سیاسی منظرنامے کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سابق ایم این اے میجر طاہر صادق نے پی ٹی آئی کارکنوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست حیثیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ مخصوص نشستوں کا تاریخی فیصلہ ملک کی سالمیت اور جمہوریت کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس فیصلے نے ثابت کر دیا ہے کہ اس سے قبل پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی مقدمات کے فیصلے نظام جمہوریت کو یرغمال بنانے کی کڑی تھی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے حلقہ این 50 میں ایک روزہ دورے کے دوران غریب وال میں نوجوان سیاسی شخصیت ملک عمران خان اور غریب وال کی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سردار نصرت ماجھیا، سابقہ ناظم یونین کونسل میاں والا ملک احمد اکرم سمیت حلقے کی کثیر تعداد میں عوام موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے پی ٹی آئی واضح اکثریت حاصل کر لے گی، مگر اس کو حکومت نہیں بنانی چاہیے، بلکہ اپنا مینڈیٹ تسلیم کروانے کے لیے حکومت کو دباؤ میں ڈال کر نئے انتخابات کی طرف لے جانا چاہیے۔ اس سے ملک میں ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ظلم اور جبر کے دور میں اٹک کی عوام نے پی ٹی آئی کی محبت کی مثال قائم کرتے ہوئے مفاد پرست سیاسی ٹولے کو مسترد کیا، مگر خود کو بہادر اور جمہوری کہنے والے سیاستدانوں میں اتنی جرت نہیں کہ اپنی واضح شکست کو تسلیم کرتے۔ وہاں تک دو لوگوں نے بہت دفاع کی، بہت زبردست طریقے سے انہوں نے NA49 میں بھی اور NA50 میں بھی مجھے اور ایمان کو بڑے اعلیٰ طریقے سے کامیاب۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے ان گراؤنڈ جو حالات تھے، جو لوگوں کے ساتھ معاملات کیے گئے، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اٹھایا گیا، پکڑا گیا، دہشت زدہ کیا گیا، تشدد کیا گیا، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پبلک نے مجھے بھی اور ایمان کو میں اس وقت رہنے کی بیٹھا ہوں یہاں بھی اس نے 26-27 ہزار کی کے ساتھ وہ نمبر 1 تھی۔ وہ بھی مولانا سعد رضوی صاحب جو تھے وہ نمبر 2 تھے، اور نمبر 3 جو ہے وہ ملک سہیل صاحب، اور انہوں نے فارم 47 اور وہ چکر ملا کے اس کو جو ہے دیکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے بھی وہ سیاسی آدمی ہے، الیکشن پہلے بھی لڑتا رہا ہے، آئندہ بھی وہ لڑنے کی کوشش کرے گا۔ اس کو کم از کم اس چیز کو اسے اور کے خاندان جیسے بندے کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ وہ مارل ان میں اتنی کرے ہونی چاہیے تھی، ان میں ضرورت ہونی چاہیے تھی، ان میں بہادری ہونی چاہیے تھی۔ ویسے تو اشارے کرتے کہ ہم بڑے بہادر ہیں، ہم تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بہادری ایسے چیزوں پہ نظر آتی ہے۔ ان کا کام تھا وہ کہتے جناب ہم ہار گئے، ہم ہار تسلیم کرتے اور مبارک دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین سے عراقی سفیر نے ملاقات کی۔ عراق کے سفیر حامد عباس لفتہ نے وزارت داخلہ اسلام آباد کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اوورسیز پاکستانیز اور مذہبی امور چودھری صالح حسین سے ملاقات کی۔ ملاقات میں عراق جانے والے زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر زائرین کو بغیر فیس انٹری ویزا کی اجازت دینے اور پاکستانی زائرین کا کوٹا بڑھانے سے متعلق امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ نے عراقی سفیر کو زائرین سے غیر قانونی طور پر زائد فیس وصول کرنے والے ٹریول ایجنٹس کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہر سال لاکھوں پاکستانی زیارات کے لیے عراق جاتے ہیں۔ محرم اور سفر کے مہینوں میں زائرین کو کئی مشکلات پیش آتی ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ زائرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عراقی حکومت کی جانب سے بغیر فیس انٹری ویزا کی اجازت ملنے کی صورت میں زائرین کو بہت سہولت ملے گی۔ پاکستانی زائرین سے عراق میں داخلے پر پاسپورٹ نہ لیے جائیں، کیونکہ اس سے انہیں واپسی میں مشکلات درپیش آتی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستانی زائرین کا کوٹا رواں سال دگنا کرنے کی بھی استدعا کی۔ عراقی سفیر نے وزیر داخلہ کو ان معاملات اور زائرین کے لیے بہترین سہولتوں کی فراہمی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر عراقی سفیر نے وزیر داخلہ کو زائرین سے غیر قانونی طور پر زائد فیس وصول کرنے والے ٹریول ایجنٹس کی فہرست بھی فراہم کی۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود نے ہاکوالا قصور کا دورہ کیا۔ پاک فوج اور محکمہ آبپاشی کے افسران کے ہمراہ بندوں کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور کے ہمراہ ڈی سی قصور محمد ارشد بھٹی، ایکسین ایریگیشن اے ڈی سی آر رانا موسیٰ طاہر، اے سی قصور ریسکیو ضلعی افسران بھی تھے۔ کمشنر لاہور کیو ایکسین محکمہ آبپاشی نے دریائے ستلج میں پانی اور بندوں پر انتظامات پر بریفنگ دی۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا کہنا تھا کہ دریائے ستلج کے کیچمنٹ ایریا سے غیر متوقع بارشوں کے امکان کے تحت پیشگی انتظامات ناگزیر ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے امسال نسبتاً زیادہ بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔
महकमा आबपाशी हमसाया मुल्क में बारिशों और मानसून पैटर्न पर मुकम्मल काम कर रहा है। जिला इंतजामिया कसूर तमाम महकमों के साथ मुकम्मल राब्ते में है, पेशगी जरूरी इकदाम उठाएंगे। उनका कहना था कि आज पेशगी वर्किंग का जायजा लिया है। दरिया सतलुज में आबी बहाव मुकम्मल तौर पर नॉर्मल है। नाज़रीन, चिश्तिया में 7 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस 28 डी ब्लॉक से बरामद हुआ, जो कि अपने रिवायती रास्तों की जानिब गामजन है। जुलूस काजी वाला रोड और खत्म नबूवत चौक से होता हुआ शाम 7 बजे इमाम बारगाह दरबतूल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के चारों तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चिश्तिया में मौजूद हमारे नुमाइंदा ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। चिश्तिया में भी 7 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस जो है वो इस वक्त 28 डी ब्लॉक से बरामद हो चुका है, जो कि मेन बाजार से होता है बुखारी चौक पर जाकर नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद ये जुलूस जो है वो काजी वाला रोड, बहावल नगर रोड, ख़त्म नबूवत चौक से होता हुआ शाम 7 बजे इमाम बारगाह दर बतूल पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। अगर बात करें जुलूस के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर, तो वहाँ पर मुख्तलिफ रुकावटें और यहाँ पर जितने भी पुलिस के और अलीट के नौजवान खड़े करके उन रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। और जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं उनकी जामिया तलाशी जो है वो मुकम्मल की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ थाना सिटी डिवीज़न के SHO अमजद इकबाल बाजवा साहब मौजूद हैं। मजीद सिक्योरिटी के हवाले से उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, मजीद सिक्योरिटी के हवाले से क्या क्या इंतजाम किए हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम अपनी ड्यूटी को इबादत समझ के करते हैं, और इस दिन पे तमाम जो मेरे साथ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं वो इसी विजन पे काम कर रहे हैं कि हमने ड्यूटी को इबादत समझ के करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रुकावटें खड़ी करके तमाम गलियां जो हैं उनको भी बंद किया हुआ है, स्नैपर हमने खड़े किए हुए हैं, और यहाँ पे 350 जो मुलाजमीन हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस जुलूस को हम अल्लाह ताला के फजलो करम से बहिफाजत मंजिल मकसूद तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा कि हम इसको शाम 7 बजे तक बहिफाजत लेके चलेंगे। बिल्कुल जी, जैसे कि SHO अमजद इकबाल बाजवा साहब की आपने बात सुनी, उनका कहना है कि इस जुलूस को अमन व अमान के साथ कोटद्दू में जमात इस्लामी की जानिब से बिजली के बिलों में जालमाना टैक्सेस के खिलाफ 26 जुलाई को मुल्कगीर होने वाले एहतजाजी धरने के हवाले से प्रेस क्लब के बाहर एक रोजा अलामती धरना जारी है, जिसमें ताजरान, सिविल सोसाइटी समेत शहरियों ने भरपूर शिरकत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। आज ही बिल्कुल दिन ब दिन बढ़ती हुई बदतरीन महंगाई और इसी के साथ साथ बिजली के बिलों में जालमाना टैक्सेस के खिलाफ आज जमात इस्लामी कोटद्दू की जानिब से जो है प्रेस क्लब के बाहर जो है एक रोज़ा एहतजाजी धरना दिया गया है, जिसमें आज जमात इस्लामी के कारकुन और इसी के साथ साथ जो है ताजर बिरादरी, सिविल सोसाइटी के लोगों ने जो बड़ी तादाद में यहाँ पे शिरकत की है। मेरे साथ इस वक्त अमीर जमात इस्लामी फुरकान आसिफ बुज़ार मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा, आज का हमारा जो अलामती धरना है ये 26 जुलाई को होने वाले मुल्कगीर धरने की इब्तिदा है, और हम ये आगाही के तौर पे यहाँ पर बैठे हैं। और ये बात इंतहाई मज़ाक़ खेज़ है कि जिस हुकूमत में आने से पहले जो दावे थे कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, हम 300 यूनिट फ्री करेंगे, अब वो हमें 200 यूनिट पर देने वाली सब्सिडी के ऊपर जो है वो आवाम को ये जिताया जा रहा है कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। ये आवाम के साथ भी एक मजाक है, यानी कि वो बिजली जो हम इस्तेमाल ही नहीं करें हम उसके भी पैसे दे रहे हैं, उसके ऊपर हमारे ऊपर जालमाना टैक्सेस हैं, पेट्रोलियम लेवी है, इसके बावजूद उनका दिल नहीं भरा और उन्होंने हमारे जो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले इंतहाई गरीब हैं उन पर भी उन्होंने टैक्स लगाया। लेकिन यह कि ये जमात इस्लामी के धरने की काल के बाद हुकूमत पे ये प्रेशर बना है और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने 200 यूनिट वालों को रिलीफ दे दिया, लेकिन इंशाअल्लाह 26 जुलाई का धरना साबित करेगा कि ये हम सारे बिलों के ऊपर इंशाल्लाह रिलीफ लेके आएंगे, और हुकूमत को ये रिलीफ देना पड़ेगा पुरअमन मज़ाहमत के ज़रिए, मुस्तकिल धरने के ज़रिए। इंशाल्लाह इस्लामाबाद में बैठ के अपने मुतालबात मनवाएंगे, और ये मुतालबात जमात इस्लामी के नहीं है, ये अवाम के मुतालबात हैं। जिस तरह के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने फरमाया कि हमने अपना इत्तेहाद अवाम के साथ कर लिया है। हमारा जीना मरना, हमारे हर तहरीक और हमारा हर मुतालबा वो होगा जो अवाम का मुतालबा होगा। पाकिस्तान में पूरी कौम का बिजली के जालमाना बिलों ने बुरा हाल कर दिया है। उसके साथ साथ जो महंगाई में बेइंतहा इजाफा हुआ है उससे हर शख्स की मईशत और उसका बजट डिस्टर्ब है। जमात इस्लामी ने एक अच्छी मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें पहले 12 जुलाई के धरने के हवाले से एक रोज़ा एहतजाजी कैंप लगाया, जिसमें अंजुमन ताजरान कोटद्दू ने शिरकत की और यकजहती का इज़हार किया। और आज 26 जुलाई के धरने के हवाले से एहतजाजी एक रोज़ा धरना दिया हुआ है, तो इसमें भी आज अंजुमन ताजरान कोटद्दू की मुख्तलिफ तंजुमों के सदूर अहदेदारों ने इसमें बतौर यकजहती शिरकत की और एहतजाजी तौर पर साथ धरना दिया। हमारा भी यही मुतालबा है कि इस वक्त मईशत का पहिया रुक चुका है, आम आदमी जो है बेरोज़गार होता जा रहा है, मजदूर परेशान है, और अब सफ़ेद पोश तबके को अपना घर चलाना मुश्किल नज़र आ रहा है। तो हुकूमत फिलफौर इस बात को समझे, ये ना हो कि फिर सड़कों पर आवाम हो
और हुकूमत का बचना मुश्किल हो। जी बिल्कुल 26 जुलाई को जो होने वाले धरने का जो आज एक रोज़ा इलामती धरना जो है वो कोटद्दू प्रेस क्लब के बाहर जो जमात इस्लामी की जानिब से दिया गया है। सख्त गर्मी है, उसके बावजूद जो है लोगों की कसीर तादाद यहाँ पे आशूरा पर सप्लाई होने वाले दूध, गोश्त और बेवरेजेस की चेकिंग जारी है। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों का सिटी, टोलेंटन और अजीज भट्टी टाउन में ऑपरेशन। 35 किलो लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स, 400 किलो ममनुआ अज्जा, 1770 किलो बीमार कम वजन मुर्गियां तल्फ कर दी गई। फिलिंग मशीनें, गैस सिलेंडर, ढक्कन, ड्रम, गैस मशीन, खाली बोतलें जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बेवरेजेस प्लांट में मारूफ ब्रांड्स की जाली बोतलें तैयार की जा रही थी। मुज़र सेहत केमिकल्स खुले रंगों और गैर फिल्टर शुदा पानी से तैयार महलूल को पैक किया जा रहा था। मौके पर किए गए टेस्ट भी फेल। सफाई के नाकिस इंतजाम पाए गए। सिटी एरिया में 25 से जायद मीट शॉप्स, गोदामों और गाड़ियों पर मौजूद 69,000 किलो मुर्गियों का मुआयना किया गया। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन और मेंबर सूबाई असम्बली मलिक रियाज के हमरा CCP और लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का नसार हवेली से करबला गामे शाह तक योम आशूर के मरकजी जुलूस के रूट का दौरा। वक्त ने योम आशूर के मरकजी जुलूस के रूट के सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। DC लाहौर राफे हैदर, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान, SP सिक्योरिटी अब्दुल वहाब, SP सिटी काजी अली रजा, ASP नौलखा और दीगर अफसरान उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर मुतालिका पुलिस अफसरान की CCP और लाहौर को सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बिलाल सदीक कमियाना ने आगा हुसैन शाह, फैजल बाश और दीगर मुंतजमीन से सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक तबादला ख्याल किया। भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। मुंतजमीन का सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। मजालिस के औकात की पाबंदी और जुलूस के रूट के हवाले से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। आज सुबह दारुल हुकूमत में बरामद होने वाले 56 अज़ादारी जुलूसों और 416 मजालिस की सिक्योरिटी पर 5000 पुलिस अफसरान और जवान तैनात हैं। मुहर्रम उल हराम के मजालिस और जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। और नाज़रीन, सरकारी तातील के रोज भी सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का दाता दरबार का दौरा। ज़ायरीन के लिए सहूलियात, गुसल इंतजामात और तरक्याती उमूर के जायजे के लिए हजवेरी हॉल दाता दरबार में आला सतह का इजलास की सदारत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। सरकारी तातील के रोज भी सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी का दाता दरबार का दौरा। ज़ायरीन के लिए सहूलियात, गुसल इंतजामात और तरक्याती अमूर के जायजे के लिए हजवेरी हाल दाता दरबार में आला सतही इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी औकाफ ने दाता दरबार पर जारी तरक्याती अमूर का जायजा लेते हुए कहा कि डेवलपमेंट स्कीमों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील यकीनी बनाए। डायरेक्टर प्रोजेक्ट औकाफ रफीक नूर ने डेवलपमेंट और डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ आसिफ इजाज ने गुसल तकरीब के मौका पर बनाई जाने वाली 13 इंतजामी और 6 ज़ेली कमेटियों और उनमें शामिल अफसरान व मुलाजमीन की ड्यूटियों की बाबत ब्रीफिंग पेश की। इस मौका पर सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी का कहना था कि ज़ायरीन के लिए सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। इसमें पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी महकमे हैं, खुसूसी तौर पर पंजाब पुलिस है, ट्रैफिक है, हेल्थ है और वासा है, जितने भी महकमे हैं वो सारे इस वक्त ऑन बोर्ड हैं और एक ग्रैंड मीटिंग जो है वो हम पहले कर चुके हैं। तमाम महकमे उन्होंने अपना ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया है, ट्रैफिक प्लान बन गया है, सिक्योरिटी प्लान जो है वो भी रेलेवेंट जो शोबा है उसने कर दिया है। इसके साथ जो महकमा औकाफ है इसके मुताल्लिक़ जितने शोबा जात हैं वो पूरी तरह एक्टिव हैं, मुस्तैद हैं। आप यहाँ आज के इस विज़िट में भी आप देख रहे हैं कि हमारा इंजीनियरिंग विंग है, एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, मजहबी अमूर है। तो मैं समझता हूँ कि ये तकरीब जो अपने शान शौकत के एतबार से एक बहुत तारीख़ रखती है और यहाँ 9 मुहर्रम को बहुत बड़ी गैदरिंग होती है और इसमें हमायदीन हुकूमत वो मौजूद होते हैं और इस तकरीब के चीफ़ गेस्ट सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी सरकर्दगी में गुसल की ये तकरीब होगी। और मुझे अभी जो डाटा दिया गया है उसके मुताबिक जो ज़ायरीन की तरफ से अर्के गुलाब है वो 60 मन तक मौसूल हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि लोगों की इसमें वाबस्तगी होती है। तो महकमे के इंतज़ामात और पंजाब गवर्नमेंट और बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब ने इस ज़मन में जो डायरेक्शन दी हैं इस तकरीब के हवाले से और ओवरऑल भी कि ज़ायरीन के लिए पानी, सबील हर जगह मौजूद होनी चाहिए, मशरूबात का इस्तेमाल होना चाहिए, लंगर उसकी क्वालिटी पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, साया होना चाहिए, उसमें पंखे लगे होने चाहिए
اور جو اس میں سیکورٹی ہے اور لنگر ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے ہمارا محکمہ اپنی پوری استعداد جو ہے اس کے مطابق محنت کر رہا ہے، اور مجھے یقین اور امید ہے کہ گزشتہ سالوں کی نسبت یہ تقریب اپنے شان و شوکت کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ ہوگی۔ اس موقع پر ایگزیکٹو آفیسر دادا دربار نعمان سیفی، مینیجر اوقاف دادا دربار شیخ محمد جمیل طاہر مقصود، ایس ڈی او دادا دربار وجاہت علی اور شیخ مبشر علی سمیت دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ کیمرامین شاہین زادی کے ساتھ سلمان شاہ، کوہ نور نیوز۔ سی ٹی او لاہور امارا اطہر کے حکم پر ایس پی سٹی منیر ہاشمی کا پروسیشن انارکلی خیمہ سعادات اور مغل پورہ پروسیشن محلہ نبی پورہ شیعہ لال پل کا دورہ۔ ایس پی سٹی منیر ہاشمی نے شہریوں کی سہولت کے لیے ڈائیورشن پوائنٹس اور متبادل راستوں کا بھی جائزہ لیا۔ ایس پی سٹی نے ڈائیورشن پوائنٹس پر موجود وارڈنز کو بریفنگ دی۔ منیر ہاشمی کی وارڈنز کو شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کی ہدایت۔ جلوسوں میں شرکت کے لیے آنے والے زائرین کے لیے بہترین پارکنگ انتظامات کیے گئے ہیں۔ وارڈنز کو مشکوک افراد اور لاوارث اشیاء پر بھی کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ شہریوں کو شہر بھر میں ٹریفک کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اورنج لائن اور میٹرو بس سروس کے صفائی کرنے والے ملازمین کے احتجاج کا معاملہ۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس اسٹیشنز پر صفائی ستھرائی کا انتظام کرنے والی کمپنی ایس ای ایم سی کے خلاف محکمہ لیبر کے افسران کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے۔ کمپنی ملازمین تنخواہوں کے نہ ملنے اور ناجائز کٹوتیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، اورنج لائن اور میٹرو بس سروس کے صفائی کرنے والے ملازمین کے احتجاج کا معاملہ ہے۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس اسٹیشنز پر صفائی ستھرائی کا انتظام کرنے والی کمپنی ایس سی ایم سی کے خلاف محکمہ لیبر کے افسران کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے۔ کمپنی ملازمین تنخواہوں کے نہ ملنے اور ناجائز کٹوتیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد عاصم راجہ سے، جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عاصم راجہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے تحت چلنے والی میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین کے جو صفائی کے ٹھیکیدار کمپنی ایس ای ایم سی کے خلاف ملازمین سراپا احتجاج ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ کمپنی 2 ماہ کی ہماری تنخواہیں ادا نہیں کرتی اور ایک چھٹی کرنے پر 5,000 روپے تک کٹوتی کر لی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ملازمین نے چند دن پہلے احتجاجن کام بھی بند کر دیا تھا۔ اس حوالے سے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے افسران سے جب میری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارا صفائی ملازمین کی تنخواہوں سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ گرین اور اورنج لائن کی صفائی کا ٹھیکہ بذریعہ ٹینڈر 2023 میں آؤٹ آف سورس کر دیا ہوا ہے۔ 50 سے زائد اورنج اور گرین لائن اسٹیشنز پر صفائی اور ملازمین کی تنخواہوں کی ذمہ دار ایس سی ایم سی کمپنی ہے۔ کمپنی ملازمین کی شکایت اور مشکلات کے پیش نظر ہم نے لیبر ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیا ہے، کیونکہ لیبر ڈپارٹمنٹ ہی کسی بھی پرائیویٹ کمپنی کے ملازمین کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ اس کمپنی کو جرمانہ کر سکتا ہے اور اس پر جلد فیصلہ کر لیا جائے گا۔ میں بتاتا چلوں کہ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے ملازمین کے احتجاج پر نوٹس لیا ہے اور ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ اور لیبر ڈپارٹمنٹ کے افسران کو ہدایت جاری کی ہے کہ فوراً اس کا جو ہے وہ حل کیا جائے اور ملازمین کی شکایت جو ہے وہ اس کو دور کیا جائے۔ جی بہت شکریہ عاصم راجہ، آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ ایس پی سٹی قاضی علی رضا کی سٹی ڈویژن کی اہم مجالس اور جلوسوں کے سیکیورٹی انتظامات کی چیکنگ۔ ایس پی سٹی نے اسلام پورہ، بھاٹی گیٹ، اکبری گیٹ سمیت نولکھا سرکل کے مجالس اور جلوسوں کے انتظامی امور اور سیکیورٹی کو الرٹ کیا۔ مرکزی جلوس اسلام پورہ بھاٹی گیٹ کے روٹ کا مکمل وزٹ کیا۔ ڈیوٹی پر مامور جوانوں کو الرٹ ہو کر فرائض انجام دینے کی ہدایت کی۔ ایس پی سٹی نے داخلی راستوں پر لگے واک تھرو گیٹ اور چیکنگ کے عمل کا مکمل جائزہ لیا۔ دوران وزٹ منتظمین سے ملاقات کی، ٹائم کی پابندی اور حکومتی احکامات بارے بریف کیا۔ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے حکومتی اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ منتظمین مجالس و جلوس و سیکیورٹی معاملات میں تعاون کریں۔ محرم الحرام کی تمام مجالس و جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ محرم الحرام بسلسلہ شہادت حضرت شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے سلسلے میں مرکزی امام بارگاہ
हवेली अल्फ शाह दहली गेट लाहौर में मजलिस अज़ा मुनाकिद की गई। बानी मजलिस सैयद मुजाहिद हुसैन शमसी सैयद जाहिद रजा शमसी थे। मजलिस से अल्लामा शबीर हैदर शराजी ने अहले बैत की शान बयान की। मोमिनीन की कसीर तादाद में शिरकत। मजीद तफसीलात बता रहे हैं आसिम बदर अपनी इस रिपोर्ट में। मुहर्रमुल हराम बा सिलसिला शहादत हजरत शहजादा अली असगर की शहादत के सिलसिले में मरकजी इमाम बारगाह हवेली अल्फ शाह दिल्ली गेट लाहौर में मजलिस अज़ा मुनक्कद की गई। बानी मजलिस सैयद मुजाहिद हुसैन शमसी सैयद जाहिद रजा शमसी सैयद अली इमरान शमसी सैयद जवार हैदर शमसी मजलिस के शुरा से खिताब करते हुए अल्लामा शबीर हैदर शराजी ने खिताब किया। अल्लामा साहब का कहना था शहजादा अली असगर करबला के वाहिद जंगजू थे जिन्होंने जालिमों को अपनी प्यास से शिकस्त दी और नाना का दीन बचाने के लिए इस तीर से शहीद हुए जो तीर गोरों को गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस तीर के 3 मुंह थे, एक मुंह शहजादा अली असगर के कान में और दूसरा शहजादा अली असगर के गले में और तीसरा शहजादे के सीने में लगा। इस तरह शहजादा अली असगर ने अल्लाह की बारगाह में अपनी शहादत का नजराना पेश किया। अल्लामा साहब ने हाजरीन महफिल से खिताब करते हुए कहा, आप लोग एक बात याद रखें, पंजतन पाक का घराना ही वाहिद घराना है जो दुनिया में अफजल तरीन घर है, ना इन जैसा कोई था और ना ही रहती दुनिया तक कोई आएगा। इख्तितामी मजलिस पर शबिया गवारा अली असगर बरामद हुआ जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह हवेली अल्फ शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने को आए। जुलूस के रास्तों में आने वाली तमाम गलियों को खारदार तारे लगाकर बंद किया गया। कैमरामैन हमाद के साथ आसिम बदर, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। अमेरिका में तैनात पाकिस्तान के नए सफीर रिजवान सईद शेख का सीबीडी पंजाब का दौरा। सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन ने सीबीडी पंजाब के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। दोनों का सीबीडी पंजाब के मंसूबों को अमेरिका की बिजनेस कम्युनिटी तक रसाई पहुंचाने पर इतफाक। रिजवान सईद शेख के हमरा मारूफ कारोबारी शख्सियत ताहिर जावेद भी मौजूद थे। सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन ने सीबीडी पंजाब के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के दौरान सीईओ सीबीडी पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन, डायरेक्टर मार्केटिंग वसीम सदीक और डायरेक्टर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग मीर आफ्ताब सयाल भी मौजूद थे। रिजवान सईद शेख का इस मौके पर कहना था कि सीबीडी पंजाब के तमाम मंसूबे खत्ते के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इन तमाम मंसूबों में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी राग़िब करने की तमाम खुसूसियात मौजूद हैं। सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन का इस मौके पर कहना था कि अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर की तरफ से सीबीडी पंजाब की वज़राए खुश आइंद है। सीबीडी पंजाब अमरीकी बिजनेस कम्युनिटी को दावत देता है कि सीबीडी पंजाब के मंसूबों में सरमायाकारी करें ताकि सूबे पंजाब की तरक्की का एक रोशन बाब देखा जा सके। मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक हुआ कि वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने के अंदर सीबीडी पंजाब सीबीडी एनएसआईटी फैसिलिटेशन डेस्क कायम किया जाएगा। अमरीका में बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स में सीबीडी पंजाब शिरकत करेगा और सीबीडी पंजाब को अमरीकी बिजनेस कम्युनिटी तक रिसाई दी जाएगी। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कबियाना की जेर सदारत कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से महकमा पुलिस की कारकर्दगी के तयन के लिए मुतारिफ करवाए गए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आपको अपडेट करते चलें, सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कबियाना की जेर सदारत कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से महकमा पुलिस की कारकर्दगी के तयन के लिए मुतारिफ करवाए गए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से जो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सीसीपीओ लाहौर सीसीपीओ वसीम साबिर के साथ राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपडेट करते चलें कि सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कबियाना की जेर सदारत कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आला पंजाब की जानिब से महकमा पुलिस की कारकर्दगी के तयन के लिए मुतारिफ करवाए गए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। देखें, सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की जेर सदारत आज सीसीपीओ ऑफिस में इजलास हुआ है जिसमें बाकायदा तौर पर
इजलास में लाहौर पुलिस के मुख्तलिफ विंग का जायजा भी लिया गया और कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया, जिसमें बताता चलूं कि CCPO लाहौर ने कहा है कि पुलिस अफसरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जारी करते परफॉर्म इंडिकेटर्स अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे और पुलिस अफसरान साइल के लिए अपने दफातर के दरवाजे 24 घंटे खुले रखेंगे। 15 कॉल्स का जो बताया गया है उसमें कहा गया कि 15 की कॉल्स FIR का बरवक्त इंदराज, मेरिट पर तफ्तीश और मजलूम को इंसाफ यकीनी दिलाया जाएगा, जबकि पुलिस अफसरान की परफॉर्मेंस के हवाले से भी जो है वो जायजा लिया गया है और उनका कहना था कि करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ पर जीरो टॉलरेंस है, किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगीन जराइम की सूरत हाल में सुपरवाइजरी अफसरान खुद वकूए का दौरा करेंगे, क्योंकि जब 15 की कॉल होती है ज्यादा से ज्यादा जो है वो SHO मौका पर पहुंचता है। CCPO लाहौर का कहना था कि DSP और SP भी जाए वकूआ पर पहुंचा करें और इसी तरह से महकमा पुलिस के तमाम विंग्स बाहमी इश्तराक से क्राइम कंट्रोल में अपना CCPO लाहौर की क़याम में अमन के लिए सर्च ऑपरेशन में तेजी लाने की भी हिदायत जारी की गई और उनका ये भी कहना था कि खवातीन और बच्चों की शिकायत को तरजीह बुनियादों पर निपटाया जाएगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि खसूसी तवज्जो दी जाएगी, शहर में ट्रैफिक की बिला तफसील रवानी यकीनी बनाई जाएगी। इजलास में मैं बताता चलूं कि DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर, इसके अलावा DIG इमरान किश्वर, DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान, इसके अलावा CTO लाहौर अमारा अतर, इसके अलावा SSP एडमन और दीगर पुलिस अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। CCPO लाहौर ने अपनी ब्रीफिंग के इख्तिताम में कहा कि थाना में आने वाले शहरियों के साथ प्यार, मोहब्बत और खलूस से भी पेश आया गया। जी, बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। और नाजरीन, मुल्की कौमी वहदत के लिए कौमी मुकालमे का आगाज नागुज़ीर है। सियासी कबीले ने दानिशमंदी से फैसले ना किए तो मुल्क बहरान से दो चार हो सकता है। इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम लीगी अरकान असम्बली और कम्युनिटी लीडर्स ने किया। अपने एजाज में रुकन सूबा असम्बली रिफत अब्बासी की जानिब से दिए गए इशाइये से खिताब करते हुए इनका कहना था कि रुकन कौमी असम्बली इंजीनियर कमर इस्लाम, अरकान सूबा असम्बली ज़ियाउल्लाह शाह, राजा हनीफ एडवोकेट मलिक इफ्तिखार, डायरेक्टर FIA मलिक सिकंदर हयात, मुस्लिम लीग ग्लासगो के सदर राना आसिम, AMS BBH डॉक्टर मुख्तियार नियाजी, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर कादिर अब्बासी साहिब, डॉक्टर हाजरा सरदार हसन औरंगजेब, चेयरमैन मार्केट कमेटी इस्लामाबाद साजिद अब्बासी, सदर नेशनल यूथ असम्बली हन्नान अली अब्बासी, सीनियर ब्यूरोक्रेट सैयद अब्दुल मनान, एंकर आबिद अब्बासी, मुस्लिम लीगी रहनुमा समीना अब्बासी साहिब, सदर इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब, साबिक MPA उसामा चौधरी, नदीम चौधरी, राना साद और हाजी सलीम भी शरीक थे। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि मुस्लिम लीगी क़यादत ने बहरानी वक्त में अपनी सियासी साख दाव पर लगाकर रियासत बचाई है। वो वक्त दूर नहीं जब कौम शाऊर और शाऊर के दरमियान लाइन खींचकर नए दौर का आगाज करेगी। खबर तक का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर फिल वक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। हर लम्हा खबर रहने के लिए देखते रहिए केयर न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।